عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر پطرس بخاری کی مزاحیہ تحریر، ان کے مزاحیہ مضمون کتے پر مشتمل ہے۔ پطرس بخاری اردو ادب میں خالص مزاح کے حوالے سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں کتوں کی مختلف اقسام اور ہمارے معاشرے میں کتے جس طرح سے جا بجا نظر آتے ہیں اور کمزور دل حضرات پر جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان سب پر بات کی ہے۔ ہم اس مضمون پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے پطرس بخاری کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ پطرس بخاری کا عرصہ حیات 1898 سے 1958 پر مشتمل ہے۔ سید احمد شاہ پطرس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پشاور میں اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے مکمل کرنے کے بعد آنرز کی ڈگری کیمبرج یونیورسٹی انگلستان سے حاصل کی۔ واپس آ کر کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں استاد رہے، پھر آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے، جہاں پر ترقی کرتے کرتے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے تک جا پہنچے۔ پاکستان بننے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے اور آخر کار اقوام متحدہ میں حکومت پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے نیو یارک منتقل ہو گئے، جہاں اس کی سیکریٹریٹ میں اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل بنا دیے گئے اور اسی عہدے پر فائز تھے کہ 1958 میں حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پائی۔ ان کی ادبی حیثیت: اردو مزاح نگاری میں پطرس بخاری ایک نیا اور اہم اضافہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی مختصر ادبی تخلیقات کے باوجود اردو ادب کو اس قدر معتبر اور پروقار انداز میں سرمایہ بخشا، ایک قلمی سرمایہ بخشا جو کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کمیت میں کم اور کیفیت میں بہت عمدہ ہونے کے باعث ان کے مضامین اردو ادب کی تاریخ میں منفرد مقام کے حامل ہیں۔ اب ان کے طرز تحریر پر تبصرہ: لگے بندھے تفریحی موضوعات اور روایتی کرداروں کے برعکس پطرس کی ظرافت ایک منفرد اسلوب کی حامل ہے۔ انہوں نے ماحول اور معاشرے کے کمزور پہلوؤں کو نہایت عمدگی کے ساتھ لطیف پیرایہ بیان میں سمویا ہے۔ تحریف یا پیروڈی کے ذریعے اعلیٰ نثری نمونے تخلیق کیے۔ ان کے مزاح میں عامیانہ پن نہیں بلکہ عالمانہ شان پائی جاتی ہے۔ عام روزمرہ کے واقعات کو پطرس نے خاص بنا دیا، ظرافت کی چاشنی کے ذریعے ان واقعات میں لطف پیدا کیا۔ کردار میں کے ذریعے ہر معاملے میں وہ اپنا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ اس کی بدولت خالص اور انوکھا مزاح پیدا ہو جاتا ہے۔ شستہ اور سادہ زبان کی بدولت ان کے مضامین رواں اسلوب رکھتے ہیں۔ ان کی شگفتگی معمولی سے معمولی بات میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ خوشگوار اور پرلطف بیان کی بدولت وہ قاری کو اپنا رازدار اور ہم کلام بنا لیتے ہیں۔ الغرض پطرس اپنے انداز کے خود ہی موجد ہیں اور خود ہی خاتم۔ ان کے مضامین اردو ادب میں ان کی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مضمون سے اقتباسات اور ان کی وضاحت۔ پہلا اقتباس: علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن کبھی سمجھ نہ آیا آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے۔ گائے کو لیجئے، دودھ دیتی ہے، بکری کو لیجئے، دودھ دیتی ہے اور مینگنیاں بھی۔ یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتا وفادار جانور ہے۔ اب جناب، وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے 7 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو صبح کے 6 بجے تک بھونکتے چلے گئے تو ہم لنڈورے ہی بھلے۔ یہاں کتوں کے حوالے سے صاحب مضمون اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں
कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, यहाँ तक कि हैवानात के माहिर सलोत्री यानी जानवरों के डॉक्टरों से भी पूछा, खुद भी सोचा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कुत्तों का क्या फ़ायदा है। जाहिर सी बात है कि हम पालतू जानवर रखते हैं जिनमें गाय भी मौजूद है, बकरी भी है, और गाय भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, और इनके फुजले को भी हम काम में लाते हैं। तो इसी लिहाज से साहिब मजमून कहते हैं कि ये सरासर हमारे लिए फ़ायदा बख्श जानवर हैं, मुफीद जानवर हैं। लेकिन कुत्ते के हवाले से मुझे समझ नहीं आया कि ये जो वफादारी के नाम पर शाम से भौंकना शुरू करता है, सुबह तक भौंकता चला जाता है, इस भौंकने से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। इससे बेहतर है कि हम कुत्ता ना ही रखें, हम अपनी ज़िंदगी ऐसे भी बेहतर गुजार सकते हैं। मज़मून से अगला इक़्तिबास। रात को 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया, अब जनाब। एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर निकले और भन्ना के पूरी गज़ल मक्ता तक कह गए। इस पर शुमाल मशरिक की तरफ से एक कदर शुनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए। कम वक्त बास तो 2 गज़लें से गज़लें लिख लाए थे, कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफ़ा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौके पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ तुम्हें ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाह आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सौतों को सताना कौन सी शराफत है। यहाँ साहिब मजमून ने इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में कुत्तों के रात के वक्त भौंके जाने को एक मुशायरे की सूरत बयान कर दिया है, जो कि मज़ाक का आला तरीन नमूना है। और साहिब मजमून इसी हवाले से बताते हैं कि रात को अगर एक कुत्ता भौंकना शुरू करे, उसके बाद एक दूसरा कुत्ता उसको जवाब दे, तीसरा कुत्ता आकर पूरी रफ्तार से भौंकना शुरू करता है, और फिर वो शोर मचता है कि रुकने में नहीं आता, ख़त्म होने में नहीं आता। यहाँ तक कि इनके हवाले से साहिब मजमून ने जो मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया कि कमबख्त बाज 2 गज़लें से गज़लें लिख लाए थे और कई एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। ये कुत्तों के उस भौंकने पर मज़ाहिया अंदाज में तबसरा किया गया है जो रुकने में नहीं आता, कहीं से थमने में नहीं आता। यहाँ तक कि रात को लोग अगर अपने घरों की खिड़की से उन्हें रोकने की भी कोशिश करें तो कोई नहीं सुनता। और इसी हवाले से वो कहते हैं कि कुत्ते अगर इनको इतना भौंकना लाजिम ही था तो किसी ऐसी खाली जगह पर जाते, दरिया के किनारे चले जाते जहां ये भौंकते। लेकिन रात को लोगों को सोते में से आकर जगाते हैं, शोर मचाते हैं, और मुझे इनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। जो इनके बारे में वफादारी का कसीदा पढ़ा जाता है, मेरे लिए ये सरासर गलत नुक्ता नज़र है। मज़मून से अखज़ करदा अगला इक़्तिबास। हमें 12 डालियाँ देकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम इनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए। जूं ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे ही में खड़े खड़े एक हल्की सी बक कर दी, फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर बक कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि राग न सुर, न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं, बेताले कहीं के। न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं, गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इसी बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। अब यहाँ साहिब मजमून ने गली के आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों में फ़र्क को बयान किया है
और इसी हवाले से कहते हैं कि वो कुत्ते जो अमीर लोग पालते हैं वो इंतहाई शाइस्ता मिजाज के हामिल होते हैं, और अगर कभी कोई अजनबी भी देखते हैं तो बहुत हल्की आवाज़ में बक करने पर इक्तफा करते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें तंग नहीं करते। और यहाँ तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए ऐसे कुत्तों की तारीफ की है कि एक तरफ चौकीदार हैं तो दूसरी तरफ उनकी आवाज़ भी मौसीकी की तरह लगती है, तो चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। और फिर गली के आवारा कुत्तों का जिक्र किया है कि वो जो भौंकना शुरू होते हैं, ना उनका कहीं सुर सुनाई देता है, ना कोई ताल होता है, ना कोई राग होता है, बस शोर मचाए जाते हैं। और इसी हवाले से उन्हें बेसुरे कहा है। बेताले यहाँ पर बेसुरे के लिए कहा गया है कि वो मौका नहीं देखते, वक्त नहीं देखते, मौका बेमौका बस भौंके चले जाते हैं। गलेबाजी करने से मुराद यहाँ पर भौंकने से है। और इसी हवाले से एक और मज़ाहिया जुमला कि घमंड इस बात पर है कि तल्ख में तो पैदा हुआ था, यानी शायद इस बात पर वो अपने गरूर कर रहे हैं कि मौसीकी का नामवर सितारा तानसेन हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता था, तो शायद बरे सगीर पाक व हिंद में तानसेन के पैदा होने की वजह से कुत्ते भी अपने आप को अहम मौसीकी का एक मौसीकी बखेरने वाला, सुर बखेरने वाला एक ऐसा शख्स समझते, एक ऐसा फ़र्द समझते हैं, एक ऐसा अपने आप को एक कह लिया जाए कि मौसीकार समझते हैं कि जो तानसेन के मुकाबले का हो। ये जुमला यहाँ पर मज़ाक के हवाले से अपनी मिसाल आप है। अगला इक्तिबास। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताल्ली समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। सत्याग्रह से मुराद यहाँ पर पुरअमन तहरीक से है। ताल्ली एक सनत का नाम है जिसमें अपनी तारीफ अपने मुंह से की जा रही होती है। इसी हवाले से साहिब मजमून अपनी तारीफ कर रहे हैं या अपने हवाले से जो कह रहे हैं कि उन्हें कुत्ते कभी भी अच्छे नहीं लगे, कुत्तों से उनकी कभी भी दोस्ती नहीं हो सकी, साहब सलामत नहीं हो सकी। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन मैंने कुत्तों को देखकर हमेशा पुरअमन होने का सबूत दिया है। आप अगर इसे मेरी खुद साख्ता तारीफ समझते हैं तो समझिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी किसी कुत्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने ऐसे मौके पर भी पुरअमन होने का सबूत दिया। मजमून से अखज़ करदा अगला इक्तिबास। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप हमें अगर उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगाएं कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है कि ऐसे मौके पर कभी मैंने गाने की कोशिश करूं तो खुरज के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी। इसकी जगह आप शायद दुआए कनूत पढ़ने लग जाएं। अब इस इक्तिबास में साहिब मजमून ने कुत्ते के भौंकने से उन पर होने वाले असर को बयान किया है कि जब कुत्तों के भौंकने उनसे मठभेड़ होने पर उनकी जो कैफियत होती है, और वहाँ उस हवाले से कहते हैं कि मैं अपने इसको शराफत कहूँगा कि मैं इस अंदाज में खड़ा हो जाता हूँ या कुत्तों का इस कदर एहतराम करने लगता हूँ, अगर वो भौंके तो देखने वाले को लगता है कि शायद मैं डर गया। और यह भी सोचा जा सकता है कि गले के खुश्क होने की वजह से, खौफ की वजह से बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन साहिब मजमून कहते हैं कि मैं अगर कुत्ते के भौंकने पर उसके साथ मिलकर गाने की कोशिश करूं तो खुरज यानी मौसीकी का जो पहला सुर लगाया जाता है, खुरज के सुरों के सिवा यानी जो सुर बखेरे जाते हैं मौसीकी के, तो वो भी नहीं निकलते। पहली दफ़ा कोई गाना गाने लगे तो उसकी कैसी आवाज़ निकलेगी।
अपने आप को इसी हवाले से मवाजना करते हुए साहिब मजमून बताते हैं कि कुत्तों के भौंकने से इस कदर खौफ का आलम होता है कि वो आयतल कुर्सी जो हमें हिफाजत के लिए याद कराई जाती है, अजबर कराई जाती है, खौफ के हालत में, खौफ के आलम में आयतल कुर्सी भी हम भूल जाते हैं और हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम दुआए कनूत पढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि वितर की नमाज का हिस्सा है। मजमून से अखज़ करदा अगला इक़्तिबास जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में भी आ चुका। क्योंकि हम तबन ज़रा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा सानहा भी पेश आया होता तो इस सरगुज़िश्त की बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता, तारीखी मिसरा दुआया होता कि इस कुत्ते की मट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। अब यहाँ साहिब मजमून ने अपने खौफ का जिक्र किया और खौफ को उन्होंने एहतियात का नाम दे दिया है। इसके बाद यहाँ सरगुज़िश्त की बात की है। वो कहते हैं कि मैंने इस कदर एहतियात बरती कि कुत्ते से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली और उसकी वजह से मैं कुत्ते से बचता रहा। और यहाँ एक कह लिया जाए कि यहाँ पर एक फर्जी सूरत हाल पेश की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कभी कुत्ते ने काटा होता तो सरगुज़िश्त यानी जो साहिब मजमून अपने ऊपर बीता हुआ किस्सा सुना रहे हैं उसकी बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता। जाहिर सी बात है ये सरगुज़िश्त लिखने वाले साहिब मजमून यानी पतरस बुखारी हैं, मुसन्निफ पतरस बुखारी हैं, और मरसिया जो लिखता उसकी जगह मरसिया छप रहा होता तो मरसिया किसी के मरने पर उसके गम में लिखा जाता है। ला मुहाला मरसिया लिखने वाला उनका कोई दोस्त होता, उनका अजीज होता या वाकिफ़ कार होता जो इस दुख की हालत में कि वो उनसे बिछड़ चुके वो मरसिया लिखता। इसके बाद आगे अगले जुमले में कहा गया तारीखी मिसरा दुआया होता कि इस कुत्ते की मट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। यहाँ मुसन्निफ ने मिज़ाह पैदा करते हुए अपने हासिदीन के बुग़्ज़ो इनाद को भी पेश नज़र रखा है। उनका कहना है कि अगर कुत्ते के काटने से उनकी मौत वाक़ होती और उनके मरने के बाद उन पर जो मरसिया लिखा जाता तो उसके दुआया मिसरे में भी उन्हें कुत्ते के उर्फ से याद किया जाता। वो अपने हासिदीन के जज्बात के पेश नज़र खुद को अदबी कुत्ता करार देते हैं। अपनी कब्र पर सब्ज़ा उगने की दुआ में भी एक किस्म की घास कुत्ता घास ही का जिक्र होता। इससे मुराद ये है यानी कुत्ता घास ऐसी खसूसियात रखती है जो किसी भी इर्द गिर्द आने वाले को उसके कांटे चुभते रहते हैं। तो यहाँ कब्र पर कुत्ता घास के उगने का क्या जिक्र है कि घास में भी वही खसूसियात हैं जो मुसन्निफ में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है लामहला तौर पर अगर कोई शख्स आगे बढ़ता है, तरक्की करता है तो जो उसके हमनवा होते हैं, उसके हम पेशा होते हैं, वो उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही सूरत हाल साहिब मजमून को भी दरपेश थी। तो वो इसी हवाले से कहते हैं कि मेरे मुखालिफिन मेरे लिए दुआ करते कि मेरी कब्र पर भी कुत्ता घास पैदा होती, मरने के बाद मरकर भी मेरा वास्ता और ताल्लुक किसी न किसी तरह कुत्ते से रहता जैसा कि ज़िंदगी भर रहा है कि मेरे मुखालिफिन मेरी कब्र पर कुत्ता घास उगने की दुआ करते। इसके बाद मजमून में शायर ने एक शेर को तहरीर के साथ दर्ज किया है। कहूँ किस्से में कि क्या है, सगे राह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। पतरस बुखारी ने इस शेर में गालिब के मशहूर शेर में से शबे गम के अल्फाज को तब्दील करके सगे राह कर दिया है और महज लफ्जी तब्दीली से शेर का मफहूम यकसर तब्दील होकर मज़ाहिया अंदाज का हामिल हो गया है। किसी कलाम में लफ्जी तब्दीली से मज़ाह पैदा करने को तहरीफ निगारी या पैरोडी कहते हैं। पतरस के इस शेर का मफहूम कुछ यूं है कि मैं किससे अपना दुख बयान करूं कि रास्ते का कुत्ता किस कदर बुरी बला है, इसके काटने का खौफ मुझे बार बार मौत के करीब तर कर देता है। इस अजियत से तो बेहतर था कि मैं एक ही बार मौत का शिकार हो जाता। मजमून से अखज़ करदा अगला इक़्तिबास। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसिर हैं,
समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। फिर इन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं। यानी एक तो मुताद्दी मर्ज है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंद यार कुत्ता कभी कभी अपने रौब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कह दें कि भाई भौंक। अगरचे ऐसे वक्त में इसे जंजीर से बंधा होना चाहिए, लेकिन ये कमबख्त 2 रोजा सह रोजा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। यहाँ साहिबे मजमून ने कुत्तों के हवाले से उनकी एक खास आदत को बयान किया है, फितरत को बयान किया है कि कुत्ते भौंकते रहेंगे। मुस्सिर का मतलब बजिद होना, कि वो तो भौंकते ही रहेंगे और जब तक वो भौंकते रहेंगे हम पर खौफ की सूरत हाल तारी रहेगी। हम खौफजदा रहेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे मौत आई कि आई, हम कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। फिर कुत्ते जिस तरह से भौंकते हैं, एक भौंकता है, दूसरा भौंकता है और फिर सब भौंकना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए साहिबे मजमून ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुतादी मर्ज, इन अल्फाज की मदद से मजमून में मज़ा पैदा हो गया और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को ये मर्ज लाहक है। यानी हर तरह के कुत्ते भौंकते हैं। और इसी हवाले से कहते हैं कोई ऐसा मोटा ताज़ा बादशाह किस्म का कुत्ता, असफंद यार से मुराद बादशाह है, तो इसफंद यार कहकर यहाँ पर साहिबे मजमून ने एक ऐसे कुत्ते का जिक्र किया है जो भारी भरकम हो और वो भौंके तो ये तो समझ में आता है। लेकिन छोटे छोटे 2 दिन के 3 दिन के छोटे छोटे वजन के पिल्ले यानी कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी पैदा होते ही भौंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से साहिबे मजमून हमेशा खौफ में मुब्तला रहते हैं। और इसी हवाले से वो एतराज़ कर रहे हैं कि इनको भौंकने से के अलावा कोई और काम नहीं है और यहाँ इसी बात को इन्होंने नाइंसाफ़ी करार दिया है कि ये हम वक्त भौंकते रहते हैं, हम पर खौफ तारी करते रहते हैं। अगला इक्तबास, कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा एतराज़ यह है कि इनकी आवाज़ सोचने समझने के तमाम कवा को मुअत्तल कर देती है। खुसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से इनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तबलीग का काम शुरू कर दे तो आप ही कहिए होश ठिकाने रह सकते हैं। हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जा होना पड़ता है। कुछ इनका शोर, कुछ हमारी सदाए एहतजाज ज़ेरे लब, बेढंगी हरकत व सकनात, हरकत उनकी सकनात हमारी। इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है। अगर मुझे ये मालूम नहीं कि ऐसे मौके पर दिमाग काम करे भी तो क्या तीर मार लेगा। बाहर सूरत कुत्तों की ये परले दर्जे की नाइंसाफ़ी मेरे नज़दीक हमेशा काबिले नफरेन रही है। यहाँ एक तो कवा लफ्ज़ है जिसका मतलब कुव्वत और काबिले नफरेन नफरत के काबिल रही है। साहिबे मजमून कहते हैं कि जब वो भौंकना शुरू करते हैं तो मेरी तमाम तर कुव्वतें जवाब दे जाती हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। और जब किसी दुकान के नीचे से, उसकी थली के नीचे से, उसके तख्ते के नीचे से पूरे जो छुपे हुए कुत्ते एकदम बाहर निकलते हैं और शोर मचाना शुरू करते हैं, जिसके लिए साहिबे मजमून ने लफ्ज़ तबलीग के ज़रिए तहरीर में मज़ा पैदा किया है। तो साहिबे मजमून का कहना है कि जब सब मजमूई तौर पर भौंकना शुरू करते हैं तो हवास बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, होश ठिकाने नहीं रह सकते। और फिर उनके शोर के हवाले से मज़ीद बताते हैं कि जब वो शोर मचाते हैं और मैं अगर एहतजाज भी करूं वो भी ऊंची आवाज़ में नहीं, दबी लफ्ज़ों में। और फिर उनके हरकत और सकनात की बात की है कि हरकतें वो करते हैं, मैं अपनी जगह पर साकत और जामद रहता हूँ, एक जगह रुक जाता हूँ, दिमाग काम करना छोड़ देता है और अगर दिमाग काम भी करेगा तो मुझे क्या समझ आएगा। तो इसी हवाले से यहाँ पर नाइंसाफ़ी की बात की गई है कि कुत्ते आके सब इज्तिमाई तौर पर भौंकना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता, सोचने समझने की सलाहियत भी मेरा साथ छोड़ देती है और इसी की वजह से ऐसे कुत्तों से मुझे नफरत महसूस होती है। मजमून से अखज़ करदा अगला जुमला, हमने कुत्तों की दरख्वास्त पर कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी हैं,
لیکن پوری مجلس کا متفقہ اور متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ یہاں صاحب مضمون اپنے خوف کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کتے ہمارا راستہ روک لیتے ہیں تو اسے انہوں نے یہاں پر لفظ درخواست کے ذریعے مزاح پیدا کیا ہے کہ راستہ بند کرنے پر ہم کئی راتیں سڑکوں پر گزار دیتے ہیں، گھر جانے کی ہمت بھی نہیں پاتے، لیکن جب سب اکٹھے ہو کر متفق ہو کر اتحاد کی صورت میں شور مچاتے ہیں، بھونکتے ہیں، جسے صاحب مضمون نے سینہ زوری کہا ہے، یعنی سینے کا زور لگا دیتے ہیں، تو یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے جس کی وجہ سے ہمارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، ہم پر اس قدر خوف طاری ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ مضمون سے اخذ کردہ اگلا اقتباس: خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ نے خدا طرز کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً اس کے جسم پر تپسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز کے ساتھ کہ گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا ہے، دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، شکل بالکل فلاسفروں جیسی اور شجرہ دیوجانس کلبی سے ملتا ہے۔ اب یہاں تپسیا کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ تپسیا جسم کو اذیت دینے کے لیے کی جانے والی ایسی عبادت ہے جو مختلف مذاہب میں رائج ہے، جیسے ہندو مت میں، بدھ مت میں اور اسی طرح کے دیگر مذاہب میں، جہاں انسان اپنے جسم کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے مختلف طور طریقے اپناتا ہے۔ بارے گناہ سے مراد گناہ کا بوجھ۔ اگلا لفظ ہے دیوجانس کلبی۔ یونان کا قدیم فلسفی تھا، ایک ایسا مفکر جس کے فکر و فلسفے سے مستفید ہونے کے لیے سکندر اعظم بھی اس کے پاس پہنچا تھا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اس کتے کی جو سڑک پر بیچ میں آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اب ایسے کتے سے کیسے بچا جائے؟ تو اسی حوالے سے صاحب مضمون نے مزاح پیدا کرتے ہوئے اسے نیک قرار دیا ہے کہ اس قدر نیک ہوتا ہے کہ مسلسل مشقت کرنے کی وجہ سے اس کا جسم بھی لاغر اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل جھکا کے چلتا ہے، اس مسکینی سے چلتا ہے اور عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا گناہگار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اب یہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور بھوک کی وجہ سے کہہ لیا جائے، یا اس بھوک کو انہوں نے تپسیا کا نام دیا ہے کہ اس کی دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی رہتی ہے اور کہیں بھی جا کر یہ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے جو راستے میں اس کا کہیں بھی بیچوں بیچ لیٹ جانے کا طریقہ ہے، اس کی وجہ سے صاحب مضمون اسے فلاسفر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ایسا ہی ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کسی نسل میں تعلق یونان کے مشہور فلسفی دیوجانس کلبی سے ضرور رہا ہوگا۔ اب مضمون کا مرکزی خیال۔ پطرس بخاری نے اپنے مضمون کتے میں بہترین ادبی مزاح پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق کتوں کے بھونکنے سے ہمارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، وفاداری کے نام پر رات بھر بھونکنے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ کتوں کی مختلف اقسام بتاتے ہوئے مصنف نے پالتو اور آوارہ کتوں کے ساتھ ساتھ مفکر کتوں کا ذکر بھی کیا ہے، جو راستوں میں بیٹھ کر ٹریفک کا نظام متاثر کر دیتے ہیں۔ شاعر نے خود کو بھی ادبی کتا قرار دیتے ہوئے اشاراتی انداز میں معاشرے پر گہری چوٹ کی ہے۔ اب اس مضمون کا تنقیدی جائزہ۔ پطرس بخاری کو ادبی مزاح کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے چند مضامین لکھے، لیکن ادب میں مزاح نگاری کے وہ شاہکار تخلیق کیے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کی عالمانہ شان اور مضمون پر گرفت کے ہر لحاظ سے مضمون میں ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ ان کے مضمون میں ایک عالمانہ شان پیدا کر دیتی ہے۔ دیکھا جائے
तो मजमून में नश्तरियत का अंसर मौजूद नहीं, इसी वजह से इसे हम तंज नहीं कह सकते। ताहम बाज मौके पर कुछ लोग इसे अपने ऊपर तंज भी ख्याल करते हैं। साहिब मजमून ने मुख्तलिफ वाक़यात को बयान किया, किरदार बयान किया और उसकी मदद से मिजाह निगारी की है। और इनकी ये एक ख़ास खूबी है कि वो अपने आप को यानी किरदार में को लेकर बात करते हैं और यूं महसूस होता है गोया वो हम ही से मुखातिब हैं। मजमून में पैरोडी का अंसर भी नज़र आता है जो उन्होंने गालिब के मजमून में तहरीफ करके पैदा किया। इसके अलावा खालिस और अनोखे मज़ाह के लिए अपनी ज़ात को निशाना बनाना यानी किरदार में के ज़रिए खालिस और अनोखा मज़ाह तख्लीक करना भी पतरस बुखारी ही का एक नया अंदाज था। बहरहाल तहरीर में रवानी और शगुफ्तगी हर जगह हमें नुमाया नज़र आती है, हमें कहीं भी किसी रुकावट का एहसास नहीं होता। कारी बगैर किसी रुकावट के तसलसल के साथ मजमून को पढ़ते हुए मजमून से लुत्फ अंदोज होता रहता है। अजीज तलबा, इसके साथ मेरा आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।